Today we are going to discuss about a topic which is known as floral formula. आपने पहले इसके कुछ symbols हैं floral formula. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Floral formula. Am I audible to everyone? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, that's Yes, the ma'am. Okay, got it. So बच्चे देखो इसमें सबसे पहले हम लोग start कर रहे हैं floral formula. There is a formula with which we can represent the flower and its position, whether it's the position of ovary, whether it's the position of flower, everything. We have a formula for this, and उसके लिए कुछ symbols हैं, and I'll explain the symbols first, then we'll start with the formula. Calyx सभी को पता है, it is the outermost part which is green color. It is represented by K. सबसे बाहर flower के part होता है calyx, which is represented by K. And we have to write it side by side. But I'll give you time. Or yes, you can write down. आप लोगों को ये तो पता ही है. Corolla में it is represented by C, capital C. Excuse me, ma'am. Yes, Laksh. Can you please send the notes of this chapter? Okay, I'll do that. I'll send the PDF file. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Okay. मुझे पर आपको क्लास में साथ साथ बनाने just write down because आप लिखोगे terms then only you'll get an idea. So first part is calyx, corolla, और मैंने आपको बताया था when the calyx and corolla they are fused, जब दोनों जुड़े होंगे it is called as perianth. Then it is androecium, which is known as capital A. Then it is gynoecium, which is known as capital G. Okay. Gynoecium को हम G से, androecium को A से. If the ovary is superior, you know what is superior ovary? आप लोगों को Yes. last class. Yes, ma'am. Yes, It is at Yes, the ma'am. top. Yes, when the ovary is at, Hypogynous. yes, hypogynous. Very good. तो इसको represent कैसे करेंगे कि ovary को इससे नीचे इसके base पे line. That means it is above all. Okay. So this is a simple representation. Inferior ovary, that is it is below all. Inferior ovary को represent कर देंगे G के ऊपर line. And we have perigynous also. Perigynous मतलब when all they are at the same level. कोई ऐसा student जिसने नहीं किया था ये topic? Yes? Is there any student who missed it? Yes. Ma'am, हाँ, I महक you. Yes. But I shared the recording. Yes, ma'am. हाँ. और in fact Ansh was also there. Ansh, आपने भी बेटे आप भी class आपके कुछ network issue था I guess. So next is actinomorphic. Actinomorphic is a new term for all of you. इसका मतलब होता है when I mean, flower it is a can... part of this. Yes. Floral formula लिखने के लिए symbols हम पढ़ रहे हैं. When flower can be divided into two equal halves from all the plane, it is known as actinomorphic. Another term for actinomorphic is zygomorphic. Zygomorphic when flower cannot be divided into two equal halves. आप imagine कर सकते हो अगर flower में 5 petals हैं, 2.5 हर जगह से आप उसे कर सकते हो cut. अगर उसमें 4 हैं तब भी आप 2 के बेसिस पे उसको कट कर सकते हो. बट अगर एक जगह 3 है दूसरी जगह 2 है, अनइक्वली डिवाइडेड है, अनइक्वली प्लेस्ड है, उसको बोलोगे आप जाइगोमॉर्फिक. व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स, फ्लावर की बात हो रही है तो उसको बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक. व्हेन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, देन इट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक. एंड द सिंबल फॉर जाइगोमॉर्फिक इज आल्सो दिस परसेंटेज. ये परसेंटेज अगर लगा हुआ है किसी फ्लोरल फॉर्मूला में, then it is zygomorphic flower. Okay. Sometimes apart from calyx, there is present a structure which is known as bract. इसको आप symbolize करोगे bracteate. Generally flowers do not have this bract and they are known as ebracteate.
Ma'am, gynoecium, superior ovary, inferior ovary, and perigynous have same symbol. यस यस, नहीं बेटे नहीं, सुपीरियर ओवरी में जी के नीचे बेस पे लाइन, इंफीरियर ओवरी में जी के ऊपर है लाइन, पेरिगाइनस में पैरेलल लाइन है. Okay. ओके, प्लीज ड्रॉ दिस फास्ट. मैम जाइगोमॉर्फिक के ऊपर वाला कौन सा है? Done, ma'am. एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनो. ओके, Done. Done, Okay. ma'am. I'm moving to the next page. कर लिया था, सभी ने लिख लिया था? मैम बस वो लास्ट वाला रह गया. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, I'm moving to the previous page only. Done, ma'am. Done. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, in last class I missed the topic of position of ovary. Can you show that page? Okay, बच्चे, right now so I don't have that page. Okay, I'll discuss it while doing the flower. I'll discuss it. Okay. Okay, ma'am. Okay. बच्चे, इसमें देखो, अब next topic लिखोगे fusion of floral parts. Fusion of floral parts. For example, epipetalous, epiphyllus, epipetalous में मतलब आप लिखो, फिर आपको I'll explain. कोरोला और एंडोशियम दोनों फ्यूज्ड हुए हैं. एपिफिलिस मतलब पेरियंथ और एंडोशियम फ्यूज्ड हुए हैं. Sometimes the flower has only male part, then it is called as staminate. Only male. This is a symbol for male because बताया था आप लोगों को मेल में sperm has to move और pollen grain has to move. और अगर सिर्फ फीमेल है तो उसको नाम देंगे pistillate flowers. Only female. Generally flowers are bisexual. दोनों होते हैं उसके अंदर. और bisexual के लिए symbol देखो, male and female. आई होप सिंबल सभी को समझ आ गए. जब हम फ्लावर करेंगे अभी सबको फिर से क्लियर हो जाएगा. देयर आर 3 फैमिलीज और आपको लर्न करनी है और आज के आज ही लर्न करनी है सबको. कृतिका बेटे समझ आ रहा है सब कुछ? कृतिका एंड महक. ओके. I'm starting with the families. Shall I proceed to the next page? Okay. Now we are starting with study of angiosperm. जानवी, हमने बेटे पहली फ्लावर जो फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज. इसमें सबसे पहली फैमिली हम पढ़ेंगे फैबेसी. जिसका पहले नाम था पैपिलोनेसी. अब हम बोलते हैं फैबेसी, पहले इसको बोलते थे पैपिलोनेसी. Just look at the floral formula. Everyone, please look on your screen. Floral formula. Floral formula में सबसे पहले मैंने ये symbol लगाया, ये percentage. And I told you when the flower cannot be divided into equal halves, then this symbol is used. That is zygomorphic.
फिर इसके बाद I'm using another symbol that is bisexual. Bisexual का मतलब अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा, both male and female in the same flower. Now coming to K. K was calyx. Calyx are 5 in number and gamosepalous. Gamo का मतलब था fused. Coming to corolla. Corolla, they are again 5 in number, 1 plus 2 plus 2. 2 are fused. Coming to androecium. Androecium, इसमें 9 इकट्ठे पड़े हुए हैं plus 1. Coming to gynoecium. Gynoecium is superior and single. This is how we write a floral formula. So first of all, you need to tell whether the flower is actinomorphic or zygomorphic. सबसे पहले आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है परसेंटेज साइन, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. दूसरा सिंबल था वेदर इट हैज ओनली मेल, ओनली फीमेल और बोथ. इन दिस केस इट इज बाइसेक्सुअल. सबको क्लियर हो चुका होगा. फिर उसके बाद फ्लावर में आउटमोस्ट पार्ट थे सेपल्स which are green in color. You can see here I have written it is 5, but they all are fused, जुड़े हुए हैं. और ऐसी कंडीशन को जहाँ पे वो जुड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन को हम नाम बोलते हैं gamosepalous. I have discussed this part in the last class. Ansh and Mehak, please listen to me carefully. दो terms आती हैं gamo और poly. Gamo means fused. When they both are fused, then it is gamosepalous. क्योंकि हम कैलिक्स को सेपल बोलते हैं तो gamosepalous. 5 हैं, दिखने में पता चल रहे हैं 5 हैं, but they are all fused. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोरोला. कोरोला होते हैं पेटल्स. पेटल्स की कंडीशन ध्यान से देखो, एक अकेला है, 2 साइड पे हैं और यहाँ पे 2 हैं जो फ्यूज्ड है. 1, 2 और 2 हैं ये, बट दे आर फ्यूज्ड, जुड़े हुए हैं. And we have to make this. नहीं, कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ सुनना है, बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी. आई विल आस्क यू टू मेक इट फ्रॉम दैट बुक ओनली, बट अभी सिर्फ समझो, बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. और जब तक नहीं समझ आएगा, और ये आता ही आता है, ये तीनों में से एक फैमिलीज आनी ही आनी है इन योर एग्जाम्स. सो देखो इसमें 1 + 2 + 2. दिस इज अ स्पेशल फॉर अ फैमिली जो पी फैमिली, मटर फैमिली है. इट इज यूनिक, जिसमें 1 अकेले को बोलते हैं स्टैंडर्ड, 2 जो अलग अलग हैं उनको बोलते हैं विंग्स, और 2 जो जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं कील. दिस इज अ स्पेशल नेम गिवन टू दी स्ट्रक्चर. और ये हम लेग्यूम प्लांट की बात कर रहे हैं, मटर की बात कर रहे हैं, लेग्यूम्स जिनमें पॉड होते हैं. पॉड समझ रहे हो, जिसके बीज ऐसे कवर्ड होते हैं. तो आई गेस सभी को कोरोला की पोजीशन पता चल गई होगी. 1 + 2 + 2. क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now coming to androecium. Androecium मैंने लिखा 9 + 1. 9 जुड़े हुए हैं. 9 कैसे जुड़े हुए हैं? देखो ये मेल है, एंथर और फिलामेंट. 9 जुड़े हुए हैं. तो इसमें आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अकेला आ जाएगा. हर्ष बेटे ध्यान से सुनो. अभी मैंने, आप जब थे अभी आपने देखा कि इसमें ये अरेंजमेंट है, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और एक कील. फिर इसके बाद ये आती है अरेंजमेंट ऑफ एंड्रोशियम 9 + 1. तो 9 जुड़े हुए हैं एक ग्रुप में, तभी इसको ब्रैकेट किया, और एक अकेला ये रहा एंथर और फिलामेंट. दिस इज अ स्पेशल अरेंजमेंट इन केस ऑफ पी प्लांट. मटर में ये स्पेशल कंडीशन है. पहले कोरोला की भी स्पेशल कंडीशन थी 1 + 2 + 2. एंड्रोशियम की भी स्पेशल कंडीशन है 9 + 1. एंड एज दे आर फॉर्मिंग 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में मतलब एक तो ये ग्रुप पूरा है, ये अकेला रह गया, बट दे आर 2.
तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे डायडेल्फस। आप लिखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा डायडेल्फस। डाई मीन्स टू, दो ग्रुप्स, एक 9 का एक 1 का, एंड ओवरी इज सिंगल एंड सुपीरियर, दैट्स इट। तो ओवरी इज वेरी सिंपल, ओवरी में देखो ये बना है डायग्राम, सिंगल एंड सुपीरियर। एंड्रोशियम में 9 ये थे, 1 ये है, तो 9+1 अरेंजमेंट को हमने क्या दिया था, डायडेल्फस। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया इनकी कोरोला की स्पेशल कंडीशन है स्टैंडर्ड, विंग Ma'am, in एंड this, कील। कील, excuse me, ma'am. यस, Ma'am, in this ovary is inferior or superior? सुपीरियर बेटे, नीचे आ गया Okay. ना। हाँ, नीचे अगर लाइन बनी है दैट मींस इट इज सुपीरियर। एंड कोरोला आपको बताया था, कैलिक्स जो बने हैं 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, केमोसेप्लस। Bisexual हैं because male and female they are both. Please draw this floral, write down this floral formula and I'll explain the features also. तो लिखो इसमें पहले ये floral formula। कितने स्टूडेंट्स को ये floral formula समझ आ चुका है? Raise your hand fast. Wow. Ma'am, please explain again. Okay, I'll do that with it. I know it is a bit difficult. That is why I'm asking. If you, any one of you have a doubt, just let me know. अच्छा, इसमें देखो, इसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखा है, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला में परसेंटेज बना हुआ। परसेंटेज रिप्रेजेंट वेदर द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स और नॉट। अगर ये 2 इक्वल हाफ्स में होता तो मैंने ये सिंबल बना देना था, प्लस इक्वल हाफ्स। ये नहीं है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए परसेंटेज साइन। फिर बाइसेक्सुअल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, ग्रीन कलर के लीव्स, गेमोसेप्लस। कोरोला की स्पेशल कंडीशन है 1+2+2। 1 है स्टैंडर्ड, 2 है विंग्स और 2 क्या है, कील, KEEL। ये स्पेशल कंडीशन होती है लिग्यूम, पॉड या फिर मटर में। और एंडोशियम इज इन 2 ग्रुप्स, डायडेल्फस कंडीशन। गाइनोशियम इज सिंगल इन सुपीरियर ओवरी। सिंगल है तो इसको बोलोगे मोनोकार्पल, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मोनोकार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी ओवरी। इसमें मोनोकार्पिलरी है, सिंगल सीड है। Okay, so please everyone write down the features now. Is this clear, Mayank? Mayank, is Yes, this ma'am. okay? Please write down. First feature लिखो habit. देखते हैं हम कैसे होते हैं plants. तो write down the first part, that is habit. Habit में लिखो trees, shrubs और herbs. Trees, herbs और shrubs. Root में लिखो, किसी को अगर याद हो स्पेशल रूट होगी मटर के केस में, लेग्यूम्स में। कैन एनीवन टेल मी? Nodulated roots. नोड्यूलेटेड, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बताया था जितने लेग्यूम्स हैं, जितनी दालें हैं, उनके अंदर नीचे आपको इन्फेक्शन मिलेगा, उनको अपरूट करोगे। याद होगा मैंने बताया था मटर का पौधा या कोई भी दाल का है पौधा, उसको अपरूट करोगे यू विल फाइंड रूट नोड्यूल्स। तो रूट की बात कर रहे हैं, दे हैव टैप रूट। प्लांट को अगर आप अपरूट करोगे तो यू विल फाइंड टैप रूट। टैप रूट होती हैं सीधा स्ट्रेट, बट दे आर इन्फेक्टेड, येलो, इसमें ऐसे येलो येलो नोड्यूल्स होंगे। तो रूट के लिए आप लिख रहे हो टैप रूट, नोड्यूलेटेड, NODULATED। नेक्स्ट लिखो स्टेम। Ma'am, they are infected. नो, इन्फेक्टेड हाँ, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर बट इट इज सिम्बायोटिक। इन्फेक्शन इज Okay. देयर, यस यस। तो स्टेम में लिखो इरेक्ट और क्लाइंबिंग। Ma'am, can you please repeat of stem? स्टेम में लिखो बेटे इरेक्ट और क्लाइंबिंग।
रूट में क्या लिखना था? रूट में बेटे टैप रूट और नॉड्यूलेटेड। ओके ओके ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट। लीव्स, लीव्स में लिखो ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझ आ रहा है सभी को कि वन लीफ एट ईच नोड। Yes, ma'am, like in mango. Yes, like in mango. One leaf at each node. This is what is alternate. Leaves लिखो alternate, simple, with reticulate venation. मैम alternate and Reticulate venation. Alternate and reticulate venation. ओके, रेटिकुलेट वेनेशन पता है सभी को कि इसमें जो नेटवर्क होगा, वेन्स का नेटवर्क होगा। नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन द इन्फ्लोरेसेंस। सबको समझ आ रहा होगा क्योंकि हम ये चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं। जिसको ना क्लियर हो प्लीज आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, लिखो इसमें लीफ में, इन्फ्लोरेसेंस में, राइट डाउन द हेडिंग इन्फ्लोरेसेंस। लिखो रेसमोस। रेसमोस में क्या होता है? टिप इज यूज्ड और नॉट? No, ma'am. Not No. used. यस, रेसमोस, वेरी गुड। तो रेसमोस में टिप में फूल नहीं होता, दैट इज वाई इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो राइट डाउन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में आप लिख रहे हो सभी रेसमोस। फ्लावर में लिखो कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट, क्योंकि डायग्राम आपने बनाया है। लिखो फ्लावर कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर इज कंप्लीट, Ma'am, बाइसेक्सुअल, inflorescence with you. जाइगोमॉर्फिक। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस ही चल रही है बेटे। नीचे आपने फ्लावर लिखा है, फ्लावर में लिखो कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? बोलो सीरत। Cannot be divided into two. Cannot be divided, वेरी गुड। फ्लावर में लिखो कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैलिक्स। कैलिक्स में लिखो 5 फ्यूज्ड, गेमोसेप्लस, गेमोसेप्लस। नेक्स्ट लिखो कोरोला। कोरोला भी 5 है, लेकिन इनकी स्पेशल कंडीशन है कोरोला की 5 में आपको बताया था, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स, एक कील। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वेक्सिलरी। VXILLARY, वेक्सिलरी कंडीशन स्पेशल कंडीशन है जिस एक स्टैंडर्ड, 2 और एक कील। Ma'am, can you explain that again, 1 to 1? इसमें 5 जो है वो अरेंज के +2+2, जिसमें एक जो है दैट इज अ विंग, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स हैं, एक कील है। Ma'am, when they both are fused, that is known as keel. हाँ, उसको कील कह दिया। ये 2 पेटल्स जब फ्यूज होंगे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज वेक्सिलरी। 1+2+2, this special condition is known as vexillary condition. Write down endoecium. एंडोशियम में लिखो 9+1। ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला था? एनीवन फ्रॉम बॉयज साइड? यस, 2 ग्रुप्स बने थे एंडोशियम के केस में। ये एंडोशियम 2 ग्रुप्स हैं।
Diadelphous. 9 कट्टे थे और 1 थे। Diadelphous. Diadelphous. Yes, very good, very good. Diadelphous. 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 Diadelphous का मतलब क्या है? दो ग्रुप्स 9 + 1. 9 का एक अलग ग्रुप बना हुआ है और एक अलग है अकेला. 9 + 1. राइट डाउन गाइनोशियम. क्या ये मुश्किल लग रहा है किसी को? ओके, सबको मुश्किल लग रहा है. गाइनोशियम में लिखो. गाइनोशियम इज सिंगल. सिंगल है तो उसमें लिखोगे मोनोकार्पिलरी. सिंगल सुपीरियर ओवरी. मोनोकार्पिलरी क्योंकि एक ही सीड बनाया है हमने. मोनोकार्पिलरी. लुक एट दिस. जी के आगे 1 लिखा हुआ है तो इट इज मोनोकार्पिलरी. सुपीरियर ओवरी. और फ्रूट कैसा है इसका? लेग्यूम. फ्रूट में लिखो लेग्यूम. सीड में लिखो नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक. सीड का हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा वेदर इट व्हाट इज एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. कितने स्टूडेंट्स को ये फैमिली क्लियर हो चुकी है? फेबेसी या पेप्लोनेसी? प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज ओके. ज्योत, उत्कर्ष, मलिका, कृतिका, जानवी, लक्ष्य, रिया, सबरवाल, तन्वी. यस, क्लियर है सभी को. एलिना, रितिका, उत्कर्ष. ओके. अंश, अनुभव, आई एम वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू. हर्ष, अंश. ओके, अंश, पलक. ओके, अनुभव. ओके, हर्ष, मयंक. बेटा, इज दिस क्लियर? Okay, Meenakshi. Yes, Mayank. Okay, Harsh, you are the only one who is left. Harsh, raise your hand if it is clear, beta. Okay, done. So we are moving to the next family, जो सबकी favorite family है, that is Solanaceae. What is Solanaceae family? पोटैटो होता है. Yes, potato, tomato, even your capsicum. तो किसी ना किसी चीज में अगर हम कई बच्चे होते हैं पोटैटोज नहीं अच्छे लगते बट कैप्सिकम आप खाते हो पिज्जास के ऊपर. टमाटोज हो गए, कईयों को टमाटोज नहीं पसंद बट वन और द अदर वे दिस फैमिली इज वेरी important commercially. So let's see its floral formula first. Floral formula में सबसे पहले हम देखते हैं whether the flower can be divided into 2 equal halves or not. In this case, it is actinomorphic. That means yes, it can be divided into 2 equal halves. Then we look for whether it is bisexual or homosexual. Bisexual or unisexual. Yes, it is bi. That means both male and female they are present. फिर हम आते हैं कैलिक्स पे, फिर आते हैं कोरोला पे, फिर आते हैं एंड्रोशियम पे, फिर गाइनोशियम पे. Let's see about their calyx, that is K. कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है. फ्यूज मतलब गैमो. कोरोला भी 5 है, फ्यूज्ड है, गैमो. गैमोपेटलस, ये गैमोसेपलस. सेपल्स 5 है, गैमोसेपलस. पेटल्स 5 है, गैमोसेपलस. गैमो मीन्स फ्यूज्ड. फिर हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम. एंड्रोशियम भी 5 है एंड दे आर फ्यूज्ड. ओवरी सुपीरियर है. अभी तक आपने पढ़ी थी 1, इसमें 2 है. वो मोनोकार्पिलरी थी, ये कौन सी हो जाएगी? बाइकार्पिलरी. Bicarpal. यस, बाइकार्पिलरी. ये जो है मैंने सिंबल दिए है कार्पल्स, दे आर फ्यूज्ड. फ्यूज के लिए इसमें यूज करेंगे गैमो या फिर सिन. सिन कार्पस, बाइकार्पिलरी ओवरी. कितने स्टूडेंट्स को फ्लोरल फॉर्मूला समझ आ गया है, कैसे लिखते हैं और क्या है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन? यस, रेज योर हैंड. एक बार दोबारा सुन. एक बार इसी में दोबारा क्लियर करते हैं. ओके, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं. आई एम टेलिंग यू इट्स फ्रॉम बॉटनी पार्ट एंड आई डोंट वांट कि किसी को भी कोई डिफिकल्टी. जस्ट आस्क मी, विल
We can do it n number of times. बच्चे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर में whether it is actino or zygo. Here in this case it is actinomorphic. That means it can be divided into two equal halves. Then we look for the sexes, whether it is male or female. अगर सिर्फ male होता then it would have with this sign only staminate. अगर female होता तो सिर्फ ये होता pistillate, लेकिन दोनों है इसके अंदर bisexual. फिर हम लिखते हैं calyx, फिर लिखते हैं corolla, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम. इन दिस केस एवरीथिंग इज फाइन. देखो आप कैलिक्स भी, कोरोला भी, एंड्रोशियम भी, पांचों हैं और पांचों जुड़े हुए हैं. जुड़े हुए हैं मतलब फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेटेड हैं. ब्रैकेटेड मींस दे आर ऑल फ्यूज्ड. इसमें गैमोसेप्लस, इसमें गैमोपेटलस. एंड्रोशियम भी 5 है. अभी हम पढ़ेंगे, ये स्पेशल कंडीशन है. ओवरी कैसी है? सुपीरियर. क्यों? क्योंकि इसके नीचे लाइन है, ब्लैक लाइन. ओवरी सुपीरियर. और दो हैं तो बाइकार्पिलरी. पीछे एक थी सिंगल ओवरी थी तो मोनोकार्पिलरी. अब दो हैं जुड़ी हुई हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है उनके पीछे. दो बीज हैं जो जुड़े हुए हैं. एंड दिस टर्म वी यूज इज सिनकार्पस. सिन मीन्स फ्यूज. सिन कह दो, गैमो कह दो, एक ही बात है. फ्री में क्या होता है? पॉली. अगर ये बीज अलग अलग होते हैं, पॉली कह दो. पॉलीपेटलस पॉलीकार्पिलरी मतलब इसमें फ्यूजन नहीं है. और सिनकार्पस में क्या होगा? व्हेन दे आर फ्यूज्ड. गैमो में क्या होगा? व्हेन दे आर फ्यूज्ड. और पॉली में क्या हो जाएगा? व्हेन दे आर फ्री. क्लियर नाउ लक्ष्य, द फॉर्मूला? Yes. ओके. पहले आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है. दिस फॉर्मूला इज यूनिक टू ऑल द फैमिली, टू द फैमिली सोलेनेसी, all the plants which are included in this Solanaceae family. इसमें एक चीज जो आप लोगों को देखनी है, that is corolla and androecium, they are fused. Now what does this mean? इसका मतलब है the petals, corolla क्या थे? Petals. Petals epipetalous. have, yes, epipetalous. Petals have androecium on them. मतलब आपने देखा था फ्लावर में थैलेमस के ऊपर आते थे एंड्रोशियम. लेकिन इन दिस केस, इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस, द एंड्रोशियम दे आर नॉट ऑन द थैलेमस, दे आर ऑन द पेटल्स. पेटल्स के ऊपर है, ऑन पेटल्स, एपीपेटलस. तभी ये भी 5 है, फ्यूज्ड है, एंड इन दिस केस आल्सो इट इज फ्यूज्ड. मैम वैसे जनरली जो होता है एंड्रोशियम वो थैलेमस के ऊपर होता है ना? यस, थैलेमस के ऊपर. So this condition here where they both have arrow on this umbrella shaped structure on the arc जो बने हुए, that means epipetalous. Epi means on, petal. Androecium is on petal. So write down the features now. Solanaceae के लिए लिखो habitat. पहले लिखो habit. Mostly herbs और shrubs. पता है सभी को आलू जमीन में से निकलते हैं, तो mostly herbs and shrubs. Rarely trees. Trees होंगे भी तो small trees. तो आपने सबसे पहले लिखा rarely small trees, mostly herbs and shrubs. रूट में लिखो फिर से टैप रूट. स्टेम में लिखो हर्बेशियस. छोटे छोटे हर्ब्स होती हैं तो हर्बेशियस बिल्कुल वीक स्टेम होंगी, अंडरग्राउंड. पता है आपको स्टेम में ये अंडरग्राउंड स्टेम है. पोटैटोज दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. हर्बेशियस HERBACEOUS, underground. Herbaceous, underground.
लीव्स में लिखो ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट लीव्स का फिर से वही मतलब है कि हर नोड पे, दिस इज द नोड, स्टेम में आप देखते हो एक लीफ हर नोड पे, वन लीफ ऑन ईच नोड, दिस इज व्हाट इज ऑल्टरनेट. Alternate condition, simple. Reticulate venation, पता है पत्ते पे रेटिकुलेट मतलब ये डाइकॉट को बिलोंग करता है. रेटिकुलेट वेनेशन, RETICULATE, रेटिकुलेट वेनेशन. इनफ्लोरेसेंस में लिखो इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी, इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी. साइमोस, ये फीचर है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. और आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला बना हुआ है. अब हम लिखेंगे फ्लावर के बारे में. राइट डाउन द फॉर्मूला. फ्लावर हेडिंग लिखो फ्लावर. फ्लावर के लिए लिखो रेगुलर, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. अलग अलग पॉइंट्स हैं. रेगुलर, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. कैलिक्स कितने लिखेंगे हम? कैलिक्स में डैश डाल के लिखो 5. From 5 fused. यस, फ्यूज्ड. जिसमें 5 फ्यूज्ड हो उस कंडीशन को एक टर्म बोलते हैं वेलवेट. मैम फ्लावर वाला करवाए तो दोबारा रिपीट. फ्लावर वाला, ओके. फ्लावर में लिखो रेगुलर, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. रेगुलर, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. कैलिक्स में लिखो 5 फ्यूज्ड. फ्यूज की कंडीशन के लिए एक स्पेशल टर्म आती है, लिखो वेलवेट. कोरला में भी लिखो 5 फ्यूज्ड वेलवेट. एंडोशियम में लिखो 5 स्टेमन्स, एपिपेटल्स. Can you repeat that? Okay. एंड्रोशियम में रिपीट कर दो. एंडोशियम में है 5 स्टेमन्स, एपिपेटल्स. और एंडोशियम, गाइनोशियम में लिखो. गाइनोशियम क्या है? लुक एट दी स्क्रीन. इट इज मैम बाइकार्पेल. बाइकार्पलरी. फ्यूज है तो उसके लिए क्या टर्म यूज की थी? फाइन. सिनकार्पस. सिनकार्पस, ओके. तो लिखो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस.
Bicarpellary, syncarpus, superior. और फ्रूट्स में लिखो कैप्सूल और बीन्स. कैप्सूल और बीन्स. सीड्स में लिखो एंडोस्पर्मिक. Please repeat fruits. फ्रूट्स में लिखो कैप्सूल और बीन्स. सीड में लिखो एंडोस्पर्मिक. Now coming to last family, that is Liliaceae. Please write down the heading. Liliaceae. इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, but I'll just explain the floral formula. We'll do this part in the next class. इसमें floral formula लिखो. सबसे पहले लिखोगे BR. What do you mean by BR? Yes, anyone? Bracteate. Bracket. Bracteate. Bracteate. ब्रैक्टिएट अगर आपने कभी किसी ने बोगनविला देखा है, बोगनविला लगा हुआ, एनीवन? पिंक कलर फ्लावर है ना? यस यस, पिंक कलर फ्लावर्स. यस तो उसमें ना दो ऐसे पिंक कलर के ऐसे लीव्स होते हैं, और अगर आप इस लीफ को एक को निकाल के देखोगे, देन यू विल फाइंड कि इसके ऊपर फ्लावर है, पिंक कलर, इसी कलर का फ्लावर होता है. फ्लावर ये, तो ये इतना बड़ा ये फ्लावर है, छोटा सा फ्लावर है, इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, बट अभी तो अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी एबल टू. अदरवाइज एक एक चीज की हमने डाइसेक्शन करनी थी क्लास में, वेदर इट वुड हैव बीन अ कॉकरोच और अर्थवॉर्म, सब कुछ, ये फ्लावर्स भी. तो डोंट वरी, मे बी विल डू इट अगर कुछ होता है पॉसिबिलिटी. तो इसमें हम देखो फ्लावर्स में ये फ्लावर है, ये कंप्लीट फ्लावर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े लीव्स हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रैक्ट्स. तो बोगनविला में जो है, बोगनविलिया में जो फ्लावर है, दैट इज नोन एज, दे आर नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर्स. और ब्रैक्टिएट इसीलिए हमने क्या लिखा इसके लिए, BR. BR मीन्स ब्रैक्टिएट. फिर इसके बाद इसी में दूसरी चीज आती है, वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक. दिस इज एक्टिनो, ये सिंबल आएगा. फिर ये बाइसेक्सुअल है. फिर इसमें पेरियंथ है. पेरियंथ का मतलब क्या हो गया, ये दोनों है ही नहीं, कैलिक्स और कोरोला दे आर फ्यूज्ड. और पेरियंथ के अरेंजमेंट है 3+3. Ma'am, it is actinomorphic. ये एक्टिनोमॉर्फिक. और पेरियंथ है, इसमें पेटल्स और सेपल सेपरेट नहीं है, पेरियंथ है. एंड्रोशियम भी 3+3 है, क्योंकि पेरियंथ 3+3 है. गाइनोशियम भी 3 है, सुपीरियर है. फ्यूज्ड है, तो कौन सी हुई, पॉलीकार्पस और सिनकार्पस? Syncarpus. Yes, it is syncarpus. Please write down the formula only.
we'll discuss this formula in the next class because ये बिल्कुल different है Liliaceae family में. इसका डायग्राम भी है, फ्लोरल डायग्राम्स भी आते हैं. डायग्राम्स थोड़े से टफ हैं. We'll discuss it in the next class. Okay? It is epiphyllous. No, it is not epiphyllous बेटे. Epiphyllous नहीं. अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग बना है. Okay? Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. So we'll do this part in the next class. I hope ये दो families सभी को clear है. If you have any kind of doubt, just let me know. Okay? So take care, Okay, ma'am. everyone. See you in the next class. Thank you, ma'am. Okay. Bye bye, everyone. Bye bye. Thank you, ma'am. Okay. Thank bye-bye. you, ma'am. Okay, बच्चों. Take care, everyone.